غم ہو گئے بے شمار ممبر نور کے جلوہ علماء کرام شورا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ اور میرے امام فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دور والوں کا دلہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں کو چمکا دیے شیشوں کو چمکا ہمارا نبی۔ کیا بات ہے، اور دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے بچوں سے بھی اچھا ہمارا نبی۔ حضرات کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہے، نہ تو منقبت کے اشعار سماعت کر رہے ہیں اور دو تقریر بھی آپ حضرات نے سماعت کر لیا ہے۔ ایک خطاب عالی جناب محترم امانت صاحب قبلہ نے اچھا پیغام آپ حضرات کے سماعتوں کے میز پہ رکھا، اور خطیب ہردی عزیز حضرت علامہ مولانا عبداللہ صاحب قبلہ جو آپ کے گاؤں میں آپ کی مسجد کے امام ہیں، جن کی ابتدا میں آپ نماز پڑھتے ہیں اور جن کی رہنمائی اور رہبری میں آپ اس عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس معظم مطہر پروگرام کو منعقد کیا ہے، اور یقیناً ہلچل سلطان پوری صاحب اب محتاج تعارف تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے حضرات۔ آپ ان کے بہت سارے پروگرام کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، اور یقیناً گلشن بھائی جیسا کلام پڑھنے والا مجھے جلدی کہیں ملتا ہی نہیں۔ اگر آپ کسی کو 10-20 ہزار روپے دے کے بلاتے تب اس آواز کی قیمت کا پتہ چلتا۔ بے شک ٹھیک، آپ ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے لگ رہا تھا کہ کچھ سن ہی نہیں رہے آپ حضرات۔ بیٹھے فقرات آپ بیٹھے اور ادب سے بیٹھے، محبت سے بیٹھے، پیار سے بیٹھے، اس لیے کہ ادب کا پیغام، مساوات کا پیغام، محبت کا پیغام، اخوت کا پیغام، بھائی چارگی کا پیغام اسلام دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اسلام کے ماننے والوں کو چاہیے اخوت سے رہیں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، مساوات کا پیغام بانٹیں، بھائی چارگی کا پیغام بانٹیں۔ اس لیے جب جو پیغام ہمیں دیتا ہے اس مذہب کو ہم مانتے ہیں تو اس پیغام کو ہمیں عام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔
बैठ कर फटरा। अब ये बताएं कि आप फटरा सुनेंगे या सलाम पढ़ेंगे? सुनेंगे। हाँ अच्छा सुनेंगे। अच्छा यार अब्दुल्ला साहब जी सर। यहाँ आदमी कम है या घर कम है या कहीं चले गए हैं आगे आदमी? नहीं हज़रत, यहाँ गांव में 45 घर है कम से कम। 45 घर है। लोग आए तो अगर 45 का चौथाई हिस्सा भी किया जाए तो आदमी तो आए नहीं। इसलिए कुछ मेरा जो दिल भाई के साथ आ गए हैं, कुछ सुगौली से मैं देख रहा हूँ आए, और आपके वाली साहब समझिए सुल्तानपुर से रहे, 2-4 लोग हम लोगों के साथ आ गए। बिल्कुल सही बात है, बहुत उम्दा। तो यहाँ वाले गए सो रहे, सिर्फ सो नहीं है, वो खो रहे। वो तो सोच रहे हैं कि हम सो रहे हैं ना, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वो अपनी आक़िबत को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, वो तो खुद सोच रहे हैं हम सो रहे हैं ना, सो नहीं रहे। अल्लाह रसूल को नाराज कर रहे हैं। ठीक है, 365 रातें हम अपने घरों में आराम करते हैं। एक आध रात तो कम से कम जिक्र खुदा जिक्र रसूल की महफिल में गुजार ही देनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर पूरी रात भी गुजारना नहीं है, 2-4 घंटे गुजारना है तो। लेकिन हालात, माहौल, मुआशरा किस कदर खराब हो चुका है। बल्कि मैं मुआशरे पे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आप हज़रात एक मर्तबा अपने हाथों में उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से कहे या रसूल अल्लाह। इतना जोर से बोले जो लोग सो रहे हैं उनकी नींद में खलबली बच जाए। ठीक है, वो सुकून से सो न पाए, इसे बोले या रसूल अल्लाह। हज़रात मेरे कहने पे नहीं, अपने इमाम के कहने पे बोलो या रसूल अल्लाह। मेरा इमाम बरेली की जमीन से हमें दर्ज दे रहा है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुनव्वर कीजिए, और गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाई के जोशो खरोश को सलामत रखे। आमीन आमीन। और इनकी जो कोशिशें जिसमें जद्दोजहद कर रहे हैं, कदर काविश कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें उस मंजिल तक पहुंचा दिया। आमीन आमीन आमीन। अब मैं शेर पढ़ता हूं और आप फरात मोहब्बत के साथ सुने शेर, और बहुत कीमती बातें आपके समातों की नजर में करने वाला हूं आज। हाफिज शकील साहब जगह कम है इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन पुष्ट पनाही जरूरी है। ठीक है जी। हाँ, क्या खूबी मौलाना अब्दुल्ला साहब, क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया। क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूहे मुनव्वर पे रख दिया। आलम का हुस्न रूहे मुनव्वर पे रख दिया, और बंजर पे क्यों ना खिलने लगे रहमतों के फूल। बंजर पे क्यों न खिलने लगे रहमतों के फूल। अरे अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया। कदम सुभान अल्लाह सुभान। अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया,
शफाअत का मामला, हाँ हाँ माशाल्लाह, यानी गुनहगार हम आसियों की शफाअत का मामला। अरे अच्छा हुआ कि रब ने शाफाए महशर पे रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सुभान अच्छा हुआ कि रब ने शाफाए महशर पे रख दिया। और बू जहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया। बू जहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया। अरे जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया, फैसला जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया भाई माशाल्लाह, और सागर सिमट के आ गया, पाते ही उनका हुक्म। माशाल्लाह, हिंदुस्तान की जमीन पे रहते हैं तो इशारा तो समझ गए होंगे। बेशक बेशक सागर सिमट के आ गया, पाते ही उनका हुक्म। जब खादिम ने कासा, अना सागर पे रख दिया। भाई माशाल्लाह, जब खादिम ने कासा, अना सागर पे रख दिया। और देखिए एक शेर बहुत नाजुक शेर है, जवानों के लिए पढ़ रहा हूं, अगर बूढ़े भी सुन ले तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। इसलिए जवान कम बैठे हैं तो मजबूरी है बूढ़ों को सुनाना। हो सकता है इनका जज्बा जवान हो जाए, और जवानी से कुछ नहीं होता। जिसका ईमान जवान होता है उसी से सब कुछ होता है। जिसका इश्क जवान हो जाता है उसी से सब कुछ होता है। तो शेर में पढ़ता हूं हजरात कि सागर सिमट के आ गया, पाते ही उनका हुक्म। जब खादिम ने कासा, अना सागर पे रख दिया। सागर सिमट के आ गया, पाते ही उनका हुक्म। जब खादिम ने कासा, अना सागर पे रख दिया। और इस्लाम की बकाओ तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते, इस्लाम की बकाओ तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते, अरे सर फातिमा के लाल ने खंजर सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया। हजरत आइए एक मर्तबा वाली कायनात, वज़ीर तख्लीक़ कायनात, मक़सूद कायनात, मक़सद कायनात, शाह कायनात, शहंशाह कायनात, हुज़ूर रहमत मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह क़दस मुक़द्दस में बाला से बुलंद इबादत की नियत से दुरूद शरीफ पढ़ने आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमल अबदा। अब आप हज़रात हमें देखें, ठीक है, उधर न देखें। अभी मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं खूबसूरत रसूल का जिक्र कर रहा हूँ। रसूल के जिक्र से खूबसूरत कोई जिक्र नहीं है हज़रात मोहतरम। तो आप सिर्फ मुझे देखें, ठीक है। आप बहुत इधर उधर देख चुके हैं, इधर उधर देखने में तो इतना देखे कि एकदम खो चुके हैं हज़रात। इस नौबत, इस हालत पे पहुंच चुके हैं जिस हालत के नीचे कोई हालत है ही नहीं है। सबसे अदना हालत पे आप पहुंच चुके हैं। तो हजरात आप मुझे देखेंगे, देखिए दुरूद शरीफ के ताल्लुक से पहले एक हदीस शरीफ में जहां जाता हूं जरूर पढ़ता हूं, ताकि लोगों को पता भी चल जाए कि दुरूद शरीफ क्यों पढ़ा जाता है। आप भी सुनना चाहते हैं हजरात? देखिए, अच्छा दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए बेनिफिट क्या है, दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए फायदा क्या है, दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए नबी का पैगाम क्या है, यानी पैगाम मुसर्रत क्या है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। चार मशहूर फरिश्ते नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। हजरत जिब्रील है नबी की बारगाह में, हजरत इस्राफील है नबी की बारगाह में, मीकाईल है नबी की बारगाह में, इसराफील अलैहिस्सलाम नबी की बारगाह में। ये चार मशहूर फरिश्ते नबी की बारगाह में दस्तबस्ता अदब के साथ हाथ बांधे हुए खड़े हैं। अर्ज करते हैं हजरत जिब्रील सबसे पहले, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जो दुनिया में आपके सबसे ज्यादा कसरत से दुरूद पढ़ेगा, मोहब्बत से दुरूद पढ़ेगा, या रसूल अल्लाह, मैं कल मैदान महशर में उसकी उंगली
अभी तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले हैं, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम नबी की बारगाह में अर्ज़ तमन्ना लिए हुए मचल रहे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जो दुनिया में आपके मोहब्बत से दुरूद पढ़ेगा, कसरत से दुरूद पढ़ेगा, इबादत की नीयत से दुरूद पढ़ेगा, कल मैदाने महशर में जहां उम्मत प्यासी होगी, आपके हौज़े कौसर से मैं उसे जामे कौसर पिला दूंगा। आपके हौज़े कौसर से मैं जामे कौसर पिला दूंगा। अभी तो हजरत जिब्रील बोले हैं, अभी तो हजरत मीकाईल बोले हैं, हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम नबी की बारगाह में अर्ज़ तमन्ना लिए हुए मचल रहे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हजरत जिब्रील उसे उंगली पकड़ के फुलसरात पार कराएंगे, हजरत मीकाईल आपके हौज़े कौसर से जामे कौसर पिलाएंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जो दुनिया में आपके कसरत से दुरूद पढ़ेगा, मोहब्बत से दुरूद पढ़ेगा, कल मैदाने महशर में मैं खुदा के हुजूर एक ऐसा सजदा करूंगा जब तक अल्लाह उसे बख्शेगा नहीं, मैं अपनी पेशानी को नहीं उठाऊंगा। अब देखिए, अभी तो हजरत जिब्रील बोले हैं, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम बोले हैं, हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम बोले हैं, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम नबी की बारगाह में अर्ज़ तमन्ना लिए हुए मचल रहे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। हजरत जिब्रील दुरूद का बदला महशर में देंगे, हजरत मीकाईल दुरूद का बदला महशर में देंगे, हजरत इस्राफील दुरूद का बदला महशर में देंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह, जो आप पे कसरत से दुरूद पढ़ेगा, मैं उसका बदला दुनिया में दूंगा। जब उसकी रूह निकालूंगा तो ऐसे निकालूंगा जैसे नबियों की रूह को निकालता हूँ, रसूलों को निकालता हूँ। यानी हजरात, दुरूद भाई से दूसरे रहमत खुदा है, दुरूद सबरे खुशनुदी मौला है, दुरूद हुसूल रज़ाए मुस्तफा का जरिया है, दुरूद हुसूल दुर्बे मुस्तफा का तरीका है, दुरूद तो आशिकों का वजीफा है, दुरूद तो ज़ाकिरीन का महबूब मशगला है, दुरूद तो महरे आदम व हव्वा है, दुरूद तो मोहरे दुनियत दुआ भी है। अगर तुम शान चाहते हो दुरूद पढ़ो, अजमत चाहते हो दुरूद पढ़ो, वक़ार चाहते हो दुरूद पढ़ो, अजमत चाहते हो दुरूद पढ़ो, बुलंदी चाहते हो दुरूद पढ़ो। यही नहीं, अगर कल महशर में खुदा को राज़ी करना चाहते हो दुरूद पढ़ो, मुस्तफा के साए में आना चाहते हो, मुस्तफा की शफाअत चाहते हो दुरूद पढ़ो। अगर तुम चाहते हो कल मैदाने महशर में जन्नतियों के सब में मुझे खड़ा कर दिया जाए, आशिकों के सब में मुझे खड़ा कर दिया जाए, तो जरूरी है कि तुम अपने आका पे दुरूद पढ़ा करो। यही नहीं, अगर तुम चाहते हो चेहरे पे नूर पैदा हो जाए, जरूरी है कि मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। अगर चाहते हो इबादत में लज़्ज़त सुरूर पैदा हो जाए, फिर भी नबी पे दुरूद पढ़ा करो। अगर तुम चाहते हो कब्र में नबी का दीदार हो जाए, सवाल जवाब में आसानी पैदा हो जाए, तो नबी पे दुरूद पढ़ा करो। और है मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो पूरी दुनिया के मुसलमानों पे हो रहे जुल्म सितम का खात्मा हो जाए, तो जरूरी है कि मोहम्मद मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। इसलिए कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। हजरात, तभी तो मेरे इमाम ने हम सुन्नियों को दर्ज दे दिया, हम सुन्नियों को अकीदा दे दिया। और सुन्नियों, जब तुम नबी पे दुरूद पढ़ा करो, कहा करो काबे के बदलू तो जा तुम पे करो रे दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करो रे दुरूद, दाफ़ाए जुमला भला तुम पे करो रे दुरूद, शफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करो रे दुरूद। और साथ हुई इंतखाब बस हुआ ना जवाब, नाम रखा मुस्तफा तुम पे करो रे दुरूद। और कोई ग़ैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ना जीता तुम पे जरा माशाअल्लाह, बड़ी हैरत से देख रहे हैं, क्या बात है? हाँ, मोहब्बत से देख रहे हैं हज़रत। अच्छा, मोहब्बत से देख रहे हैं। बीवी ने शौहर से पूछा, मिराजुद्दीन भाई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? शौहर बोला बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, बीवी ने कहा मोहब्बत करते हो, अगर मैं मर गई तो? शौहर बोला मैं तो पागल हो जाऊंगा।
बीवी बोली दूसरी शादी तो नहीं करोगे ना? शौहर बोला पागल कुछ भी कर सकता है। पागल कुछ भी कर सकता हाँ, पागल कुछ भी कर सकता है। अच्छा दुरूद शरीफ पढ़ें आप हज़रात। हज़रात, मैंने जो शेर पढ़ा था उसी पे खिताब करूँगा। कुंतुम खैरा उम्मा, अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या बात है। वाह वाह कोई इंसान नहीं कह रहा है, अल्लाह का कलाम कह रहा है। जरा सोचिए जरा, कौन? अल्लाह का कुरान, जिस कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सुभान अल्लाह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है मुत्तकीयों के लिए। वही कुरान में इरशाद फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अच्छा क्यों बेहतरीन उम्मत हो? अल्लाह इरशाद फरमाता है इसलिए बेहतरीन उम्मत हो कि लोगों को बुराई से रोकते हो और नेकी का हुक्म देते हो, इसलिए बेहतरीन उम्मत हो। और कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है जो पूरी दुनिया का पैदा करने वाला रब, वो कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो। और कहीं एक जगह इरशाद फरमाया अल्लाह कुरान में लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, इंसान को अल्लाह ने अच्छी सूरत में पैदा फरमाया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इंसान को अल्लाह ने अच्छी सूरत में पैदा किया है, लेकिन आज मुआशरा कितना खराब है। अल्लाह कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन आज हम लोग कितना घटिया काम करने लगे हैं, कितना गलत काम करने लगे हैं। अभी मौलाना अब्दुल्ला साहब ने बताया कि हजरत असल में कुछ मामले की वजह से हालात खराब चल रहे हैं, प्रोग्राम को हमको यहाँ इसराइली भाई के दरवाजे पे करना पड़ गया, इसलिए कुछ लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं कि जब चंदे का पैसा है किसी के दरवाजे पे क्यों आप करा रहे हैं। लेकिन हजरात यहाँ दरवाजा नहीं देखा जाएगा, किसका जिक्र हो रहा है वो देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, तुम अपने नबी का जिक्र दरवाजा देख के करोगे, तुम अपने नबी की सीरत किसी का दरवाजा देख के से मत करोगे। नहीं हजरात, हालात कितने खराब हैं। फातिमा के लाल ने, मैंने कहा था ना, सर जी इस्लाम की बका के लिए खंजर पे रखा था मौलाना। ये इस्लाम जिसका मजाक आज तक उड़ा नहीं, जिस इस्लाम को हमने चाय के होटल में समेट दिया, मुक़य्यद कर दिया, जिस इस्लाम को हम अखबार पढ़ के तबसरा करते हैं, वो हम तक ऐसे नहीं आया है जैसे हम और आप समझ रहे हैं। हजरत वो मैदान याद करो जहाँ हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अमीर हमजा हैं, हुजूर के चाचा हैं, हुजूर बेपनाह मोहब्बत करते थे। हजरत देखे मंजर इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा मौलाना, देखें आप, हुजूर के चाचा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया जाता है, और सिर्फ शहीद नहीं किया जाता, आपके जिस्म के कई टुकड़े कर दिए जाते हैं। और आपके जिस्म को टुकड़े टुकड़े करने के बाद जान रहे हो हजरत, वहां पे एक मुशरिका औरत थी, एक काफिरा औरत थी, जिसके खानदान के कई अफराद को हजरत अमीर हमजा ने इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कत्ल किया था। वो औरत कसम खा रखी थी कि अमीर हमजा अगर ये शहीद हो जाएंगे, अगर ये दुनिया से सही तौर पे चले जाएंगे, इनके नाक को मैं काटूंगी, इनके
कान को मैं काटूंगी और इनका कलेजा निकाल के छिपाऊंगी। हजरात, जब हजरत अमीर हमजा शहीद होते हैं, बॉडी के कई टुकड़े हो चुके हैं, लाश की आपके जिस्म मुकद्दस के कई टुकड़े हो चुके हैं, वो औलाद आपके कान को काटती है, आपके नाक को काटती है, उसके बाद आपके सीने को चाक करती है, आपके कलेजे को निकाल कर जमीन पे थूकती है। तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है हजरात, जिसका मजाक आज हम उड़ा रहे हैं, जिस इस्लाम से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मस्जिद हम तक कैसे नहीं आई। फिर यही नहीं हजरात, हजरत अमीर हमजा के साथ उसमें बहुत सारे सहाबा किराम शहीद हुए थे हजरात। एक सहाबी का नाम हजरत मुसाअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु है, वो भी शहीद होते हैं। हुजूर की फूफी हजरत सफिया जो है, और हुजूर ने अपने फूफी साहब से कहा था, जुबैर, सफिया यानी अपने अम्मी से ये बात अपने भाई के बारे में न बताना, वो अपने भाई की लाश को ना देखे, इसलिए कि बहन है, बहन की ममता जब अपने भाई की लाश को देखे वो तड़प उठेगी, वो चीख उठेगी। लेकिन हजरत सफिया, जनाब सफिया जब अपने भाई की लाश को देखती है, तड़प उठती और कहती है, मेरा भाई अगर रसूल के दीन की अजमत के लिए सर कटा दिया है तो मैं रसूल के दीन की बुलंदी के लिए सब भी करने जाऊंगी, सब भी करने जाऊंगी। जानते हो, यही नहीं हजराते हो, बल्कि जब कफन दफन का नंबर आता है, आज हमारे पास 40-40 जोड़े, 50-50 जोड़े कपड़े होते हैं। आज तो ब्रांडेड कफन भी लोग चाहते हैं, जिस एतबार से वो दर्द है। लेकिन देखिए दीन कैसे आया है। हजरत सफिया है और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु और हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु अन्हु शहीद हो चुके हैं। हुजूर कफन के लिए कपड़े मंगाते हैं। हजरत सफिया 2 चादर रखी होती, 2 चादर रखी होती है। एक चादर हजरत उमर, हजरत मुसाअब बिन उमैर को दे दिया जाता है और दूसरी चादर हजरत अमीर हमजा यानी अपने भाई के लिए रखती हैं। और जब कफन देने लगती है ना, कब्र में आपको लिटाया जाता है, तो इस कदर इतनी बड़ी चादर नहीं थी कि आपका पूरा बदन छिप सके हजरात। लेकिन जब लेटाती है, देखती है अगर सर को बंद कर रही थी तो पाँव खुल जा रहा था, और पाँव को अगर बंद कर रही थी कब्र में तो आपका सर खुल जा रहा था। हुजूर की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, चादर तो बड़ी छोटी, अगर मैं सर को बंद कर रही हूँ पाँव खुल जा रहा है, पाँव को बंद कर रही हूँ सर खुल जा रहा है, तो हुजूर कैसे करें। हुजूर फरमाते हैं, जाओ मेरे चचा मेरे हमजा के सर को बंद कर दो, जो पैर बाकी रहे उस पर घास डाल दो, दफन कर दो। तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है, जिसका मजाक हो रहा है, जिस मस्जिद का मजाक, जिस मौलवी का मजाक, जिस मिंबर का मजाक, जिस महफिल का मजाक हम सोचते हैं बहुत आसानी से पहुंचा है। याद करो हजरत बिलाल हबशी। आज हम सिर्फ नमाज के लिए तैयार नहीं होते और बहुत बड़े मुसलमान बने फिरते हैं, कहते हैं बहुत बड़े मुसलमान हैं, नारा लगाते फिरते हैं, लेकिन सोचो वो मंजर जब उमैया बिन खलफ हजरत बिलाल को गरम रेत पे घसीटता रहा नंगी पे, और अवकाश बच्चों को, बदमाश बच्चों को आपके हाथ पांव को बांध कर रस्सियां पकड़ा देता था, कहता था बिलाल को उस वक्त तक घसीटते रहना, उस वक्त तक सजाएं देते रहना, जब तक ये बिलाल नबी का कलमा पढ़ना छोड़ न दे। लेकिन हजरत बिलाल का बदन जैसे जैसे गरम रेत पे घसीटा जा रहा था, ईमानी हरारत बढ़ती जा रही थी, मोहब्बत बढ़ती जा रही थी।
حضرات سبحان اللہ بلال کہہ رہے تھے امیہ بن خلف تو جان تو لے سکتا ہے لیکن ایمان نہیں لے سکتا ہے، وہ ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا۔ حضرات اب سوچیے اسلام کتنی مشقتوں کے ساتھ اب تک آیا، کتنے مصیبتوں کے ساتھ اب تک آیا۔ آج ابھی میں نے دیکھا کہ مسجد میں صرف مہمان تھے، گاؤں کے کاک لوگ رہے ہوں گے تو رہے ہوں گے، نہیں تو ان کو تو نہیں لگا رہے ہوں گے، میں کہہ اگر رہے ہوں گے تو ہم نہیں بتا سکتے، صرف مہمان تھے۔ آپ کیسے نبی سے محبت کرتے ہیں، کیسے نبی سے پیار کرتے ہیں، کیسے مسلمان ہیں حضرات؟ شرم نہیں آتی کہ انسان کو وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے پیار کرتے ہیں۔ نبی نے تو ارشاد فرما دیا جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے گویا وہ دین کو گرا دیتا ہے، دین کو ڈھا دیتا ہے۔